কোভিডের ছোবলে ক্ষতবিক্ষত গোটা দুনিয়া। কৃষি থেকে শিল্প, শিক্ষা থেকে সাংস্কৃতিক জগৎ, সর্বত্রই কোভিডের কালো থাবার হানাদারি। লকডাউন চলাকালীন কেমন আছে এ রাজ্যের মাঝারি শিল্পগুলি? কেমনই বা আছে আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের লৌহ ইস্পাত নির্ভর বেশ কিছু কারখানা? লকডাউন উঠে গেলেও কি সহজেই স্বাভাবিক হতে পারবে ঝিমিয়ে থাকা এই সব শিল্পগুলি? পৃথিবীকে বিপর্যস্ত করে তোলা করোনা ভাইরাসের চোয়ালে যাওয়া রাজ্যের শিল্প কারখানাগুলির মালিক পক্ষ কি চাইছেন কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছ থেকে? তেমনি বেশ কিছু প্রশ্নের ডালি নিয়ে এক্সপ্রেস নিউজ হাজির হয়েছিল দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি লৌহ ইস্পাত নির্ভর শিল্প কারখানায়। মালিক পক্ষের সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে এসেছে তেমনি কিছু অতি প্রাসঙ্গিক বিষয়। লকডাউন ঘোষণা হতেই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে দুর্গাপুরের লেনিন সরণি, কাঞ্জিলাল সরণি কিংবা সঞ্জীব সরণির বেশ কয়েকটি বেসরকারি ইস্পাত কারখানার দরজা। গত এক মাস ধরেই বন্ধ রয়েছে প্রায় প্রতিটি কারখানারই চুল্লি। কারখানার দক্ষ শ্রমিকদের সিংহভাগই ফিরে গেছেন নিজ নিজ রাজ্যে। এই অবস্থায় এক অজানা আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন এই এলাকার শিল্প কারখানার মালিক পক্ষ। লকডাউন খুললেই কি ফের উৎপাদনমুখী করতে পারবেন তাদের কারখানাগুলিকে? উত্তরটা অবশ্য প্রত্যেকেরই জানা। চটজলদি কোনো মেডিজি অবশ্য কারোর কাছেই নেই, কারণ যারা কারখানার উৎপাদন ব্যবস্থাকে সচল রাখেন সেই দক্ষ শ্রমিকদের সিংহ ভারী চলে গিয়েছেন তাদের সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে। যারা যেতে পারেননি তারাও লকডাউন খুললেই পাড়ি দেবেন নিজ নিজ রাজ্যে। ফলে লকডাউন খুললেও সহজে খুলবে না ওইসব শিল্প সংস্থার বন্ধ দরজার তালা। लेबर की बहुत बड़ी चुनौती है, क्यों कि ये बात है कि लेबर जितने काम करते हैं हमारे स्टेट के या आसपास गांव के लेबर कमती हैं। बाहर स्टेट के लेबर मेनली बिहार, यूपी के, झारखंड के लेबर ज़्यादा हैं। उनमें से आधे लेबर तो वापस चले गए लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद ही, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में जैसे जिसको सुविधा मिली चले गए। कुछ लेबर है जो हैं यहाँ पे, परंतु जब भी लॉकडाउन खुलेगा तो वो लोग भी वापस अपने गांव जाएंगे। 1 महीना के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए जाएंगे वो लोग भी, क्यों उनके घर वाले भी वहाँ परेशान हैं। बार बार उनका फोन आता है, परंतु चूंकि जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार का आदेश भी है, तो इसलिए उनको हम लोग रोक के भी रखे हैं। उनको खाना, राशन, दवाई, पानी, पैसा सब कुछ दे रहे हैं कि भाई तुम रुको, अभी यहीं पे रहो, गवर्नमेंट का आदेश है, घर से बाहर मत निकलो। तो तुम जहां हो सेफ हो, घर पे जो है वो लोग भी सेफ हैं। किंतु जैसे ही खुलेगा तो वो लोग जाएंगे, और जो लोग चले गए ऑलरेडी वो भी जल्दी से वापस नहीं आएंगे। वो भी पहले खबर ले लेंगे कि यहाँ प्लांट चालू हो गया, सब ठीक है, शांति है, कहीं कोई कोरोना का इफेक्ट नहीं है, तो फिर वे लोग 15-20 दिन बाद, 1 महीना बाद वो लोग आएंगे। यही समस्या ट्रक ड्राइवर लोग के साथ में है, क्यों ट्रक ड्राइवर, क्लीनर जितने भी हैं वो भी जो बाहर चले गए वो जल्दी से आएंगे नहीं। अब जब सब कोई आएंगे तभी काम सुचारू रूप से चल पाएगा। ये तो एक ऐसी चुनौती है जो हम लोग ने कभी सोचा भी नहीं। अचानक से हम लोग को खबर मिला कि लॉकडाउन करना है। इतने सारे लोग थे हम लोग के पास, उस लोग का क्या करें, कैसे उन लोग को सुरक्षित पहुंचाया जाए या कैसे उनको रखा जाए। फिर भी काफ़ी लोग तो चले गए हैं, जो दूसरे प्रदेश के थे, काफ़ी लोग इंडस्ट्री से चले गए हैं, लेकिन जो लोग हैं अपने पास उनको हम लोग अपने फैक्ट्री में रखे हैं। पूरी उनका ख्याल रखते हैं कि किसी भी तरीक़ा से उनको दिक्कत नहीं हो। लेकिन जिस दिन भी ये लॉकडाउन खुलेगा वो लोग भी चले जाएंगे, और उस समय इंडस्ट्री कैसे चालू होगी वो समझ के बाहर है। जो लोकल लेबर है उसके लिए सरकार के तरफ से प्रेशर है कि उनका पूरा पेमेंट कर दीजिए। उनको पेमेंट भी कर रहे हैं, जैसे सक रहे हैं वैसे पेमेंट कर रहे हैं ताकि उनको भी दिक्कत नहीं हो। लेकिन लोकल लेबर के भरोसे प्लांट तो चलना नहीं है, तो सारे पैसे जो है वो सब उन लोग में निकल जाएंगे। লকডাউন থাকাকালীন কারখানার চিমনি দিয়ে ওড়েনি ধোঁয়া, কারণ কোনো কারখানাতেই উৎপাদন হয়নি এক ছটাকও ইস্পাত। কিন্তু কারখানাগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মেই, যদিও সেই বিদ্যুৎ দিয়ে শুধু ঘরোয়া প্রয়োজনই মেটানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও নিয়ম অনুসারে ডিমান্ড চার্জও দাবি করতে পারে বিদ্যুৎ বন্টনকারী সংস্থাগুলি, কারণ এই রাজ্যে এখনও ডিমান্ড চার্জ মুকুব করা হবে কিনা সেই ব্যাপারে কোনো কিছুই ঘোষণা করেনি। ফলে উৎপাদন না হওয়া সত্ত্বেও ডিমান্ড চার্জ গুনবার আশঙ্কায় দিন গুনছেন এই শিল্পপতিরা। চাইছেন
মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের মতো এই রাজ্যেও মুকুব করা হোক এই অব্যবহৃত বিদ্যুতের দাম। के लिए एक डिमांड चार्ज और एक एनर्जी चार्ज। डिमांड चार्ज हुई कि मेरा उनसे जो कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई इतना एमबीए मैं लोड लूंगा, इतना केवीए लोड लूंगा, तो उसका एक चार्ज होता है, और एक जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई पर यूनिट की उसका एक रेट होता है। तो अभी तो चूंकि लॉकडाउन है, गवर्नमेंट की कंपल्सन है, तो इंडस्ट्री सारी बंद है, तो डिमांड तो जीरो है। अभी तो सिर्फ जो भी फैक्ट्री में या रेसिडेंशियल एरिया में जो भी इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पंखा है, वही लोड ही सिर्फ उठ रहा है। तो इसमें हम लोगों ने यहाँ सरकार को भी लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कॉम सबको भी लिखा है, रेगुलेटरी कमीशन को भी लिखा है कि भाई डिमांड चार्ज का वेवर होना चाहिए। क्योंकि डिमांड चार्ज मैं अपनी इच्छा से डिमांड नहीं ले रहा हूँ, ये बात नहीं है, कंपल्सन है, गवर्नमेंट का आदेश है, इंडस्ट्री को बंद रखना है, तो जब बंद है तो डिमांड उठ ही नहीं सकती। ऑलरेडी इंडिया में 6 स्टेट, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नहीं, ये 6 स्टेट अभी तक डिक्लेयर कर दिया है कि कोई डिमांड चार्ज नहीं लगेगा, और ड्यू डेट को 1 महीना एक्सटेंड कर दिया है आफ्टर लॉकडाउन। नहीं, उस स्थिति में तो मैं आपको बतलाया कि यदि सरकार कुछ भी नहीं कर पाती है, इंडस्ट्री की कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आती है, तो 60% इंडस्ट्री चालू ही नहीं हो पाएगी, वो आज से ही मर गई। अच्छा है, लोग का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, जिंदा रहेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। लेकिन हम लोग अब सोच करके मेंटली प्रिपेयर्ड है कि हम लोग का नंबर लास्ट में, तो हम लोग को सबसे ज्यादा सजा मिलनी है, तो अब जो होगा देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि कोरोना तो समाप्त हो, लोग काम में निकले, काम चालू। अच्छा, काम चालू करने के लिए राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से बहुत बड़ा हेल्प स्टील सेक्टर को चाहिएगा। করোনা পরিস্থিতির উন্নতি হলে মাঝারি এই কারখানাগুলিকে বাঁচাতে এগিয়ে আসতে হবে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলিকেও। কারণ উৎপাদিত পণ্য বিক্রি হলেও রাতারাতি বকেয়া সমস্ত পাওনা টাকা কারখানা মালিকরা আদায় করতে পারবেন না। ফলে ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধ করা প্রায় তাদের কাছে অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমনকি এই সমস্যা থেকে অর্ধেকেরও বেশি কারখানা হয়তো উৎপাদন শুরুই করতে পারবেন না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন শঙ্করবাবু। এই ব্যাপারে তিনি ব্যাংকগুলির কাছে আগামী 6 মাসের জন্য মোরাটোরিয়ামও প্রার্থনা করেছেন। এই বিষয়ে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপও প্রার্থনা করেছেন সোনুবাবুও। চেয়েছেন শ্রমিকদের সাথে বকেয়া মজুরির বিষয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলির মাধ্যমে সুষ্ঠু আলোচনাও। सरकार का सहयोग के लिए मैंने जो बताया आपको कि दोनों बात है, केंद्र सरकार से चाहिए कि बैंकों को क्लियर डायरेक्शन दे कि भाई आपको जिनका जो भी लिमिट है, लोन है, आप 25% एडहॉक उनको शॉर्ट टर्म लोन के हिसाब से दीजिए। हमने उनको प्रपोजल भी दिया है कि आप 25% हमको शॉर्ट टर्म लोन दीजिए, 6 महीने का मोरेटोरियम, और 18 EMI में हम उसको आपको रिपेमेंट करेंगे। हम लोग सरकार नहीं है जो पूरे राज्य को बचा सकते हैं, हम लोग का अपना लिमिटेशन है, हम लोग का अपना रिसोर्स है। उससे हम लोग ने यही डिसीजन लिया कि जो हमारे लोग हमारे कंपाउंड में रह गए, हमारे यहाँ रह गए, हम उनको सुरक्षित करें ताकि वो जा करके और बाहर में किसी को कोरोना संक्रमित ना करे, उनसे और समाज को तकलीफ ना हो। শিল্প বাঁচলে হয়তো তবেই বাঁচবে আগামীর ভবিষ্যৎ। দুর্গাপুর আসানসোল শিল্পাঞ্চলের নাভিশ্বাস ওঠা অগণিত শিল্প কারখানাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই হয়তো কারখানার শ্রমিকদের পাশাপাশি একটা বৃহত্তর ভবিষ্যৎকেই বাঁচিয়ে রাখা যাবে। আর সেটুকু সহযোগিতা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার না করলে বহু শিল্পাঞ্চলের মতো এই শিল্পাঞ্চলও একদিন মরুভূমি হয়ে যেতে পারে। সেদিনটাও কিন্তু খুব দূরে নয়। ব্যুরো রিপোর্ট, এক্সপ্রেস নিউজ।